Hello students, I am B.S. Kushwa and I welcome you all. Today we will discuss the examination, CSAT examination, which recently happened on 4th October 2020. So I call it CSAT 2020. Basically, when I look about the CSAT examinations, that it was really a 2020 examinations because the maths questions were also there, means a good level of maths questions, and there was reasoning, very less reasoning questions are there, and you know that this time 4 and 5 questions were from DS part, means data sufficiency part, asked by the CSAT UPSC, right? And in UPSC in CSAT examination, mostly the trend follows is what 50 questions around from mathematics, reasoning, general mental ability, decision making, and all over that, and 30 questions were around from comprehension part, right? But this time in 2020 there were 55 questions from mathematics and reasoning and DS part and general mental ability. There was no question of decision making, and 35 questions were from comprehension part. So we'll discuss one by one the each and every question of mathematics and reasoning and come to know that what is the answer. So first question there was, which I have, is the how many number of zeros were asked in that question. Some numbers are given in product multiplications form, and question asked about the how many zeros are there at the end of the values. So as we are continue with our mathematics for CSAT 2021, so the topic which I have read you, that this was the main topic. I told you that in number system you need to focus on that one. So this is the question from our part, and the values are 1 into 5 into 10, 10 into 15, 20, 25, 30, 15, 20, 25, 30 into 35, 40, 45, 50, 55 into 35, 40, 45, 50, 55 and 60. Question is asking about the number of zeros, right? So I told you that number of zeros are as many zeros you can see, count those are, right? 10, 1 0, 20 is what? 2 into 10, right? 30 is what? 3 into 10. Clear? This 40 is what? 4 into 10, and this 50 is what? 5 into 10. Clear? And this 60 is what? 6 into 10. So I can say that there are how many 10? 1 into second into third into fourth, fifth and sixth. 3 and also there, right? So I can say that by these 6 I can get 6 zeros, right? Other form of creating zero is what? 2 cross 5. 2 into 5 gives you 1 0. That means you need to find out the power of 2 and power of 5. So first time I'm counting the power of 2, right? Don't count 10 again because 10 is already counted here. So this is the first power of 2. Again, this is 25, 35, no matter. This 4, it will give you what? 2 raised to 2, right? Coming with this one, this 6, again this is, you will get what? 2. So I can say that the 1 power and here 2 power of 2, that means 1, 2, 1, 3 and 1 is what? 4. 2 raised to 4 are there. Clear? Now we are talking about the power of 5. If we get power of 5 more than 4, right? So there is no need to count more powers because we have only 4 times 2. That means we can create only 4 zeros. We can create 4 pairs maximum, right? So 1 5 from here, 3 into 15, sorry, 3 into 5. Clear? There is what? 2 5, 5 into 5. So 1 2 3 4, 4 are completed, and they again here we have 5, right? So there are more than power. So I can say that 5 raised to 4 into 5 raised to n. I am not writing the value of n, but I can create how many pairs? 4 pairs. 4 pairs means what? 4 0. And there is no other way of creating zero. Zeros can be created by 2 into 5, or if direct zeros are given, we need not to break down that 0 into 2 into 5. So 6 0 plus 4 0 overall is what?
10 zeros. So your answer is what? 10 in that question, right? I don't know that set 1 is what, but this is the question number 7. Clear? So you need to do what? Directly count down the zeros. After that, count out that what, how many powers of 2 and how many powers of 5. Which power has the less value will give you the number of zeros. Means you need to create the pairs. Clear? Coming for the next question. Next question says that if x, y, z be a 3-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3. Question is saying that x, y, z is a 3-digit number, right? And again saying that where means x plus y plus z is not divisible by 3 or multiple of 3. Same thing. If it is not divisible by 3, that means it is not the multiple of 3. Now after that question is saying that xyz plus yzx plus zxy, right? The sum of these three is not divisible by. This value is not divisible by. And this is the question. Options were provided, no matter. So this is what the 3-digit number, right? 3-digit number, how we write this? I am writing it this way. We can say that 100x plus 10y plus 1 dot z. This is the writing way. Unit, tenth and what? 100 place. राइट तो हम क्या लिखेंगे कि ये अपना यूनिट प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई, 10th प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई और 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई. एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स वुड बी व्हाट? 100y 10z प्लस 1x, यही होगा. अगला क्या होगा? z x y वुड बी व्हाट? 100z प्लस 10x plus 1 dot y. Clear? Now question saying that addition of these three, that means 1 plus 2 plus 3. So I'm adding. In this 100 is common. So this become x plus y plus z. Right? If this is what? Or I can directly use that. Thus 10 is common. X plus y plus z. Plus 1 is common. That means x plus y plus z. Clear? आउट ऑफ दीज थ्री टर्म्स, दिस वन एंड दिस वन, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? कॉमन है. तो 100 यहां से, 10 यहां से और 1 यहां से. तो मैं कह सकता हूं कि x वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10 110 एंड प्लस 111, मतलब 111 x प्लस वाई प्लस जेड. क्लियर? नाउ क्वेश्चंस ने कहा है कि दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये वैल्यू तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, मतलब इसमें 3 का भाग लग ही नहीं सकता. बट ये जो 111 है ये तो 3 का मल्टीपल है. क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कहता है? ऑप्शंस आर गिवन 3, 9, 37 एंड x प्लस वाई प्लस जेड. ऑप्शंस आर 3, 9, 37 एंड x प्लस वाई प्लस जेड. तो समझो x प्लस वाई प्लस जेड का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो फुली डिविजिबल है. क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नॉट डिविजिबल. 3 का भाग देंगे तो 111 कट जाएगा, तो ये पूरा भाग चला जाएगा. 37 का भाग देंगे तो भी 111 कट जाएगा, तो पूरा भाग चला जाएगा. देन आंसर इज व्हाट? 9. और हाउ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये तो 3 है, 9 से डिवाइड होने के लिए ऊपर 9 बनना जरूरी है. To divide from 9, there should be 9 in numerator, right? लेकिन यहां कितना बनेगा? केवल 3, और ये 3 का मल्टीपल है नहीं, तो दूसरा 3 नहीं मिल पाएगा, तो 9 बनेगा नहीं. तो आंसर क्या होगा आपका? 9 इज योर आंसर. क्लियर? तो किससे डिविजिबल नहीं होगा? ये 9 से नहीं होगा. डन?
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर सच दैट, ये तो बहुत आसान है, आप लोगों ने डायरेक्ट कर भी लिया होगा। पी क्यू आर एंड एस आर नेचुरल नंबर सच दैट, क्या दिया हुआ है कि P माइनस 2016 इज इक्वल टू Q प्लस 2017 इक्वल्स टू R माइनस 2018 is equals to S plus 2019 and question asking about the largest number is what? सिंपल सा फंडा समझो, P एक वैल्यू है, उसमें से 2016 माइनस हो रहा है, तब वो Q में कुछ जोड़ने के बाद मिलेगा, तो इसका मतलब P बड़ा है, Q छोटा है। क्योंकि क्यों है छोटा कि P एक नंबर, उसमें से कुछ कम कर रहा हूं, उसके बावजूद भी Q तक नहीं पहुंच रहा, उसको बराबर बनाने के लिए Q में कुछ जोड़ना पड़ रहा है, मतलब Q सच में बहुत छोटा है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, माइनस कर दूं, दोनों का अंतर कितना है, 2016 और 2017, मतलब 4033 का अंतर है P और Q के बीच में। अब बात करते हैं, तो ये तो और भी छोटा हो गया, एस में 2019 जोड़ूंगा तब भी पी तक नहीं पहुंच पा रहा। तो वैल्यू की जो बात करेंगे लार्जेस्ट के लिए, जो कंपैरिजन होगा वो इन दोनों में होगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। अब यहां समझो कि दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन कब है, जब पी में से 2016 घटाता हूं और आर में से 2018 घटा रहा हूं, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, तभी तो ज्यादा घटा के बराबर में आ रहा है। दैट मीन आई कैन से दिस पी माइनस 2016 बराबर है आर माइनस 2018 के। तो अगर मैं ट्रांसफर करूं तो समझो, अगर मैं r को इधर लाऊंगा, अगर मैं p माइनस आर निकालना चाहूं तो 16 उधर जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा। दैट मीन मेरा वैल्यू डिफरेंट है, तो r माइनस पी होगा तब 2 मिलेगा, तो कौन बड़ा हो जाएगा, r। तो मैं कह सकता हूं लार्जेस्ट इज व्हाट, r। काय को है, समझ में आ गया, वाई सबसे बड़ा होगा, उसी में से ज्यादा घटाना पड़ रहा है, तभी तो बराबर है। दैट मीन दिस नंबर इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। अगला देखो, अगर स्मॉलेस्ट की बात होती तो जिसमें सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे ज्यादा ऐड किस में किया हुआ, 2019 किस में किया हुआ है, एस में, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है अपना, एस होता। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 डिजिट का यूज करना है। एंड क्वेश्चन सेइंग दैट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब यू कैन नॉट यूज 1 डिजिट अगेन। क्लियर। ये पांचों के पांचों एक नंबर में आनी ही चाहिए, 5 डिजिट का एक नंबर बनना चाहिए। जैसे मैं बनाता हूं कोई भी नंबर 5 2 3 4 1, ये भी एक नंबर है। ऐसे ही आप 1 2 5 4 3 बना सकते, तो ऐसे बहुत सारे नंबर बनेंगे। क्वेश्चन चाह रहा है कि उन नंबरों में प्राइम कितने होंगे, वो आपको बताने। तो देखो, जब नंबर बनेगा तो एक 5 डिजिट्स आएंगी, और मैं इतना सिंपल देख सकता हूं कि 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। 15 मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स लागू है। तो जो भी नंबर बनेगा उसमें 5 डिजिट्स आएंगे, ये 5 डिजिट्स होंगे, एंड सम ऑफ द डिजिट्स इज व्हाट, 15, एंड 15 इज फुली डिविजिबल बाय 3। दैट मीन जो भी नंबर बनेगा हमेशा 3 से डिवाइड होगा, और जब वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा तो दैट कैन नॉट बी ए प्राइम नंबर, तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। दैट मीन द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय दीज 5 डिजिट इज 0। क्लियर, गुड। We'll move to the next one. नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, आपका जनरल मेंटल एबिलिटी है। बेसिकली हम इसे रीजनिंग नहीं कहते, मोस्टली लोग इसे रीजनिंग में काउंट कर लेते हैं। इसमें क्या आपको कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, मींस इन प्लेस ऑफ डिजिट एक सिंबल दे दिया है। मैं उस सिंबल को स्टार मान लेता हूं। ये कह रहा है जी स्टार प्लस 1 स्टार प्लस 5 स्टार प्लस डबल स्टार एंड स्टार 1, डबल स्टार प्लस स्टार 1 इज इक्वल्स टू 1 डबल स्टार। राइट। नाउ क्वेश्चन सेइंग दैट व्हाट इज द वैल्यू इन प्लेस ऑफ स्टार। स्टार की जगह पे आएगा क्या, ऑप्शंस हैं आपके यहां पर 2 3 4 एंड 5। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं आपके लिए
देखो दो फंडे बताता हूं। पहला फंडा तो ये है जी, मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट आई हैव सो मच ऑफ टाइम। मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि जैसे भी करके क्वालिफाई हो जाए। मेरे पास बहुत टाइम है, 3 घंटे का पेपर है। तो मैं क्या करता हूं, पहली बार इसकी जगह पे 2 रख के देख लूंगा, आ जाए तो बहुत अच्छा है। 3 रख के देख लूंगा, लेकिन याद रखना अगर आप यहां 2 रखोगे तो 122 आना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना। मतलब आपको करना क्या, सारे स्टार की जगह पे 2 रख दो, फिर उसे चेक कर लो। अगर टोटल इसके बराबर आ जाए तो सही है, नहीं आया तो गलत है। नहीं आया अगली बार 3 रख लेना, फिर 4 रख लेना है, 5 रख लेना। इस तरह से आप चल सकते हैं। मैं कहता हूं दूसरा तरीका अपन लेके चलते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कहता है, मैं यूनिट प्लेस को ऐड करूंगा, स्टार 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 स्टार, 4 बार स्टार है और उसके बाद आ रहा है 1। तो मैं कह सकता हूं कि स्टार का 4 गुना, 4 बार स्टार जोड़ना है, मतलब 4 का स्टार इंटू 4 अगर करें और उसमें 1 जोड़ दें तो जो भी नंबर मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट स्टार ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि स्टार का जब 4 गुना किया जाए तो वो खुद से 1 कम यूनिट डिजिट मिले। तो मैं रखता हूं जी, 2 रखा तो 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं मैं छोड़ा। 3 रख तो 4 तिया 12 और 1 13। तो यहां 3 रखा तो यहां भी वैल्यू कितनी आ रही है यूनिट पे, 3 आ रही है। मतलब 4 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो स्टार से स्टार मैच हुआ। दैट मीन द वैल्यू ऑफ स्टार इज 3। क्लियर? आप चाहें तो आगे चेक कर सकते हैं। इस सबको जोड़ोगे तो 4 तिया 12 13 का 3 आ जाएगा। हासिल आपकी लग जाएगी 1 को जोड़ते तो ये तो जरूरी नहीं, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 10 और 3 13। आंसर मैच है 133। दैट मीन द इन प्लेस ऑफ स्टार और सिंबल वॉट एवर इज प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन इज इक्वल टू 3। कॉमन सेंस के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस आपके बेसिक पे है नहीं कि आपको प्रॉपरली यूज करना पड़े। जस्ट सिंपल गो विद द फ्लो, हमेशा से कहता है, राइट। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव 2 स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट। क्वेश्चन कह रहा है कि 7.5 फीट और एक 3.25 फीट की 2 स्टिक्स हैं। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ आई कैन मेजर बाय विद द हेल्प ऑफ दीज 3। मिनिमम करना है तो टुकड़े करने पड़ेंगे, लेकिन स्टिक को तो काट नहीं सकता। दैट मीन एचसीएफ ले लो दोनों का, 7.5 का और 3.25 का। द एचसीएफ इज 0.25 फीट। और यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। किया हुआ है, टुकड़े करने पड़ेंगे, मिनिमम चाहिए। मिनिमम मतलब छोटा होगा, आंसर्स होगा जो दोनों से कॉमन होना चाहिए। मैंने बताया एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन चीज जो दोनों की हेल्प से मिलकर निकाली जा सकेगी। कॉमन होगा दोनों में, स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो एचसीएफ निकालते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू होती तो मीन्स आंसर अगर हमारा बड़ा होता तो हम क्या निकालते उससे। अगर आप ऐसे भी नहीं जा सकते तो सिंपल वे में चल सकते हो। मैं कहता हूं इसका डबल कर लें तो ये 6.5 देगा, ये 7.5 है, मतलब 1 मीटर नाप 1 फीट नाप सकता हूं। मैंने देखा कि 2 करते ही 1 फीट हो गया है, तो मैं इसको 4-5 बार करके देखूंगा तो आप अपने आप किस पे पहुंच जाओगे, 0.25 पे। क्लियर? बाकी बेस्ट वे क्या है, सिंपल सा है, एचसीएफ लेना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक सीरीज दी हुई है आपको यहां पर। मैं पहले उस सीरीज को लिख लेता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस को रीड आउट करके बताता हूं। सीरीज आपकी है 14, 18, 20, 24, 14, 18, 20, 24, 30, 32 एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। अगर आपने सवाल नहीं पढ़ा तो आप जो भी आंसर्स निकालेंगे वो ऑप्शंस में आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर? बिकॉज आप इसमें एक सीरीज लगाओगे और आपको दिक्कत होगी। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इस सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड ईच नंबर of the sequence this given in a results in a sequence with respect to prime numbers, that is the key point of the question। प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं के रेस्पेक्ट में सीरीज तैयार की गई है। तो जी हम देखते हैं ये है क्या, 13 + 1। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है आपका 17, उसमें 1 जोड़ दिया, 17 + 1।
17 के बाद आपका आता है 19, उसमें एक जोड़ दिया तो 19 + 1। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगला प्राइम नंबर ले रहा हूं, उसमें एक जोड़ रहा हूं। तो सिंपल फंडा देखते हैं। 24 क्या है, 23 + 1, 23 के बाद क्या आएगा आपका 29, 31 एंड 37। 37 आपका प्राइम है, इसमें एक और जुड़ जाएगा तो आंसर क्या आएगा आपका 38। क्लियर है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं अभी। तो सारे क्वेश्चंस आसान हैं, कोई भी टफ नहीं है ऐसा अभी तक। तो ये अच्छा है, ये कहता है कि 1 पेज इज फ्रॉम ए बुक हुज पेजेस आर नंबर्ड इन द नेचुरल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द रिमेनिंग पेज इज 195। सम फॉर रिमेनिंग पेजेस इज इक्वल टू 195। क्लियर? तो आपको बताना है कि कौन सा पन्ना फाड़ दिया गया। ऑप्शंस लिख दूं आप कहें तो आपके लिए क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 12। ये 4 आपके ऑप्शंस हैं। क्लियर? सवाल क्या है उसको समझते हैं। सवाल कह रहा है कि किताब है, उसमें कुछ पन्ने हैं, पेजेस हैं, नॉर्मल वे में जैसे होते हैं, एक से स्टार्ट। उसमें से एक पेज हमने, एक पन्ना हमने फाड़ दिया। एक पन्ना जब आप फाड़ते हो उसके दोनों तरफ पे 2 नंबर राइट डाउन किए होते हैं, राइट। वो दोनों नंबर जब हट गए हैं तो जो बचे हुए पेज नंबर्स हैं उन सबके नंबर्स का अगर सम किया जाए तो 195 मिलता है। वी नीड टू नो दैट क्वेश्चन वांट्स टू नो दैट कौन सा पेज फाड़ा था, और जो पेज फाड़ा था उस पे नंबर्स क्या थे, 5, 6 थे, 7, 8 था, 9, 10 था और 11, 12 था। क्लियर? अब बात करते हैं कि उस बुक का आखिरी पेज पे कोई नंबर लिखा होगा। अगर मैं उस तक के सारे नंबरों को जोड़ दूं तो 195 प्लस फटा हुआ पन्ना, इनमें से कोई एक का टोटल उस टोटल के बराबर होगा जो आखिरी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर 10 पेज की किताब है तो 10 पेजों का जो टोटल होगा वो होगा 45। लेकिन 45 कब होगा, जब दिया गया टोटल प्लस ये। लेकिन यहां टोटल कितना है, बचे हुए पेजेस का टोटल है 195, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू, अज्यूमिंग दैट मिनिमम कितने पेज तो होने चाहिए, 195 है। अगर मैं 19 पेज की किताब मानूंगा, 19 पेज की अगर मैं किताब मान लेता हूं तो 190 टोटल होता विदाउट पेज ब्रेक। लेकिन ये तो पेज ब्रेक के बाद भी 195 है, तो 20 पेज की किताब मान लेता हूं। लेट टोटल पेजेस 20, तो सम क्या हो जाएगा आपका 20 × 21/2 मीन्स 210। इससे बड़ा आना चाहिए क्योंकि ये तो फटने के बाद है पेज। तो आप देखो 195 में कोई 2 नंबरों का एडिशन करके क्या मैं 210 पर पहुंच सकता हूं। कितने की जरूरत पड़ेगी, 15 की। प्लस 15 होगा तब जाकर आपको कितना मिलेगा, 210 मिलेगा। तो क्या किसी 2 पेज का टोटल सब 15 है? ये तो 11 है, ये है 15, 7 एंड 8। दैट मीन आई कैन से दैट जो पेज फाड़ा गया उसके नंबर्स हैं 7 एंड 8 और टोटल बुक के पेज कितने हैं आपके, 20 पेज की बुक है, राइट है। सिंपल सा फंडा है। दूसरी चीज, ऑड नंबर्स में कभी पेज हो नहीं सकते बुक के। अगर 1 से स्टार्ट हुआ है तो उसके पीछे 2 मतलब इवन नंबर तो आएगा ही आएगा। ये भी सिंपल सा फंडा है। तो 19 पेज की बुक हो नहीं सकती, 20 पेज की बुक आप मान रहे हैं। हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 20 पेज इससे बड़े आ जाएंगे तो हम चेक करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर नहीं होता तो हम आगे 21 पेज पे भी जा सकते थे। 21 पेज पे अगर आप इस कंडीशन में जाएंगे तो वो कंडीशन बहुत बड़ी हो जाएगी, और बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर उतना तो सम आप बना भी नहीं सकते क्योंकि पेज ही नहीं दिए हैं, राइट। सो विल मूव फॉरवर्ड। पहले इसको हटा देते हैं। अपने हाफ एन आवर्स के कुछ पार्ट्स बनेंगे इसमें, राइट। तो हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है A3BC, एक 4 डिजिट नंबर है A3BC। क्लियर? एक और नंबर है दैट इज DE2F, DE2 एंड F। क्लियर? सवाल कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर जो नंबर मिला है 15902,
राइट। राइट, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लेटर्स हैं ये ग्रेटर देन 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, इन दोनों को ऐड करने पर मुझे 15902 मिल रहा है। तो ए और डी का डिफरेंस क्या है? माइनस मैंने लगा दिया, बेसिकली क्वेश्चन आस्किंग अबाउट द डिफरेंस, मींस लार्जर माइनस द स्मॉलर वन। क्लियर? तो हम चेक करते हैं, सी और एफ दो नंबर्स का टोटल कितना आना चाहिए? 2। पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर्स कितने से बड़ा होना चाहिए? 3 से। 3 तो हो नहीं सकता, तो मिनिमम 4 होगा। तो 2 कब आएगा? जब उसमें कुछ ऐड किया जाए। तो अगला 2 कहां मिलेगा आपको? 12 पर मिलेगा। क्लियर? तो यहां 12 का आना जरूरी है। यह बात कंफर्म है या नहीं है? क्लियर है? 12 का आना जरूरी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि C प्लस F की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 12 है। राइट? अब अगर ये 12 के बराबर है तो C और F को 12 बनाने के कितने पॉसिबल केसेस हैं उसको हम समझते हैं। एक होगा 5 प्लस 7, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा 7 है कौन सा 5 है, क्योंकि क्वेश्चन ने C और F की वैल्यू तो पूछी ही नहीं है। किसकी पूछी है? A और D की पूछी है। अगर C और F की वैल्यू पूछ लेगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, बिकॉज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई विच वन इज 5 एंड विच वन इज 7। एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। 6 प्लस 6 नहीं हो सकता, बिकॉज ऑल डिजिट्स आर रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट डिजिट्स। राइट? सो 5 प्लस 7 हो सकता है या 4 प्लस 8 हो सकता है। ये दोनों केस हमने रख लिए, उसको चेक कर लें कौन सा होगा। तो मैं कहूंगा कि यहां 2 आया 12 में से, तो एक कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो 1 प्लस 2 3 तो ऑलरेडी है। 3 में b जोड़ रहा है तो 0 आ रहा है। 0 किस में आता है? 10 में। दैट मीन द v की वैल्यू जो होगी वो कितनी होनी चाहिए? 7, तभी 10 आ सकता है। ये 10 आएगा तो 0 यहां हो गई, यहां एक कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो ये कितना हो गया? 3 और 1 4। इसको 4 बनाने के लिए e की, ये 4 है और ये 9 है, तो e की वैल्यू 19 तो बना नहीं सकती क्योंकि 15 आ नहीं सकता, तो केवल क्या आ सकता है? 5। तो मैं कह सकता हूं कि e की जगह पर क्या आएगा जी? 5। तो 5 और 4 9। दैट मीन a और d का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 15। क्योंकि यहां से कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो मैंने लिखा कि a प्लस डी की जो वैल्यू है वो 15 होगी। ये बात क्लियर है? अब बात करते हैं 15 किस पे आता है? 15 आता है 9 प्लस 6 पे। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल केस ही नहीं है 15 के लिए। पहली बात क्लियर? और कहीं 15 आ ही नहीं सकता। अब बात करते हैं हम C और F के बारे में। तो E की वैल्यू 5 ही हो सकती है, तो C और F के लिए ये वाला केस खत्म हो जाएगा और C और F की वैल्यू कितनी हो सकती है? 4 एंड 8। तो आप चेक कर सकते हैं 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो A और D का जो वैल्यू है वो आया 9 एंड 6। तो डिफरेंस क्या होगा? 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो आपका आंसर कितना होगा? 3। क्लियर हुआ? यूनिट के प्लेस के हिसाब से हम इसमें आगे बढ़ते चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इट, डीएस का क्वेश्चन है। ये कहता है कि 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको, S1 एंड S2 आर गिवन, यू नीड टू फाइंड आउट विच वन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर्स। S1 कहता है देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन एनी पेज ऑफ 51 पेजेस बुक। मतलब 51 पेजेस बुक है, नॉट मोर देन 2 फिगर। राइट? ये स्टेटमेंट 1 कहता है। स्टेटमेंट 2 जो है वो कहता है देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेजेस। एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेजेस। राइट? ये 2 स्टेटमेंट्स आपको दिया। क्वेश्चन जो है वो ये कहता है हाउ मेनी फिगर्स आर, नहीं नॉट हाउ मेनी, are there more than 100 figures in the book? Are there more than 100 figures in a book? तो ये सवाल है, मतलब सवाल चाह रहा है कि आप ये बताओ इन दोनों का यूज करके या सिंगल से आपको क्या इस सवाल का जवाब मिल सकता है। क्या किताब में 100 से ज्यादा पिक्चर हैं?
अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो पहला वाला कहता है कि पहली चीज तो किताब में 51 पेज है और किसी पेज पे 2 से ज्यादा नहीं है, तो मैं कह सकता हूं अगर हर पेज पे 2 माने जाएं तो 102 बनेंगे, लेकिन जरूरी नहीं हर पेज पे 2 हो, क्योंकि क्वेश्चन का मैक्सिमम होगा। तो 51 पेज की बुक में मैक्सिमम 102 पिक्चर्स हो सकती हैं, मतलब मोर देन हो सकती हैं, नॉट कंफर्म, राइट। टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये कहता है एटलीस्ट एक तो होगी, मतलब हर पेज पे अगर एक मानूं, मिनिमम पर भी अगर मैं जाता हूं तो 51 होंगी, मतलब हो सकती हैं। So that means if I merge both, either I cannot find out the answers perfectly that there are more than 100 or less than 100 or equal to 100, because कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया गया है कि किस पेज पर कितनी बुक्स हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया। हाँ, अगर 105 होता तो मैं कंफर्म कहता कि नहीं हो सकता। वाई? क्योंकि मैक्सिमम 102 हो सकता है, राइट। आंसर इज व्हाट? बोथ 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर्स, राइट। So we'll move forward for the next question.